Hello students, so let's start. We'll continue the first chapter, important topic, production possibility curve. The very first question is define PPC. PPC is the graphical presentation of different combination of two goods that an economy can produce at a given level of resources and technology. What you have to remember over here is the graphical presentation. First thing, different combination of two goods that an economy can produce at a given level of resources and technology. Means resources and technology is given. Now we will understand it in detail, but for that we have to understand few questions, other question also. State the assumptions of PPC. This PPC can only be possible if we take some assumption. First assumption is all resources and technology are assumed to be constant. Resources and technology are assumed to be constant. And second, all factors are not equally efficient. So first point is all factors are not equally efficient, and second is the resources and technology are assumed to be constant. These two first you have to assume, then only you can able to define PPC or construct PPC. Now till now we haven't understand what is PPC, but we will understand it properly through the help of graph. So that's why I haven't explained it. Now come to the graph first. Construct PPC with the given schedule. See, in the definition what we have studied, it is a different combination of two good. So in the graph also we will, in the schedule C we have taken two good, butter and second is gun, and these are the combination A B C D A E F, means 6 combination we have taken, and these are the production of butter and this is the production of gun. If you see it carefully, what you can see that if we use all the resources and technology in the production of butter, that means gun is 0. First combination, see the first combination, if we use all the resources in production of butter, then how many butter we can produce? 15. And gun is 0. Why 0? Because all the resources are used in production of butter. Now if I say that along with butter I used to produce one gun also, then we have to bring some resource from butter in for the production of gun. So we have to decrease the production of butter in order to increase the production of gun. In the same way, as the production of gun increase, but production of gun butter will be decrease. The question is why? सोच के देखिए, अगर हम सारा संसाधन बटर में लगा दें तो क्या हम गन प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ आई विश टू हैव प्रोडक्शन ऑफ गन ऑल्सो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बटर में जो संसाधन, उसके थोड़े संसाधन हमें कहाँ लगाने पड़ेंगे? गन में. तो जैसे जैसे गन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, बटर का प्रोडक्शन घटेगा, क्योंकि वहाँ का रिसोर्स कहाँ यूज़ हो रहा है? गन में. तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? सी, पहला कॉम्बिनेशन 15-0 मीन्स सारा प्रोडक्शन बटर का है, गन 0 है. इस तरफ 14-1, 12-2, 9-3, 5-4 एंड बटर 0, तो गन कितना बनाएंगे? 5. These are called the different combination. Now come to the definition. It is a graphical presentation of different combination. How many combination I have taken over here? 6. So 6 combinations we can make at a given level of resources and technology. अब ये डिटेल में ये शेड्यूल हम लोग बाद में समझेंगे. पहले आ जाइए इस चीज़ को ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे. सी, आई हैव टेकन गन on the x-axis over here and butter on the y-axis. Clear? Now 15-0 means butter is 15, gun is 0. Butter is 15, gun is 0. That means over here. Yes or no? 14-1, that means over here. In the same way we will get different combination. When we join this combination we get a curve, and this curve is known as production possibility curve. What does this curve show? This curve shows that different combination of two goods that an economy can produce at a given level of resources and technology. दिए हुए संसाधन और तकनीक से we don't have to increase the resources and technology. अगर हम रिसोर्स इंक्रीज करेंगे तो PPC
ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट करेगा अपवर्ड। सो रिसोर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट। और दो चीज़ एज्यूम इसीलिए कहते हैं, पहले तो क्या कि ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, याद रखिएगा। एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक लेबर है और एक मशीन है, क्या दोनों इक्वली एफिशिएंट है, नो। और दूसरा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को क्या रखना है, कांस्टेंट, देन ओनली वी कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट पीपीसी। अप टू हियर आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, सॉरी, properties of PPC. There are two properties of PPC. First is PPC should be downward sloping from left to right. See, from left to right it's downward sloping. Yes or no? You can see from left to right it's downward sloping. Now why downward sloping? बहुत easy answer है इसका. When we are increasing the production of gun, the production of butter decrease. It means which type of relation is there, positive or negative, direct or opposite relation. Since we are increasing one production and decreasing the other, means inverse relation, opposite relation. And when there is opposite relation, the curve will be always downward sloping. अगर एक को increase कर रहे हैं दूसरा decrease हो रहा है तो हमेशा कर्व क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर गन को इंक्रीज करते प्रोडक्शन और बटर को भी इंक्रीज करते, जो कि पॉसिबल है नहीं, लेकिन तब हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गन का प्रोडक्शन जब इंक्रीज कर रहे हैं तो बटर का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। दैट्स वाई द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब तुम बोलोगे सर क्यों एक को इंक्रीज करें तो दूसरा को डिक्रीज करें, बिकॉज वी हैव कांस्टेंट, वी हैव फिक्स्ड, वी हैव resources and technology same. That's why we are not increasing the resources and technology. Clear? तो रिसोर्सेज अगर उतना ही, अगर हमारे पास 50 ही आदमी है और सारे बटर में लगा दे और गन बनाना है तो हमें वहीं से तो आदमी लेना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास 50 आदमी है। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पीपीसी शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, पीपीसी इज कनकेव टू द ऑरिजिन। कैन यू सी, ये कनकेव है। कनकेव मीन्स ये फूला हुआ है, इट इज़ नॉट लाइक दिस, कन्वेक्स नहीं है, या फिर इट इज़ नॉट लाइक दिस ऑल्सो, लीनियर भी नहीं है, इट इज़ लाइक दिस, कनकेव। ये कनकेव है। अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों है, तो आई विल टेल यू द रीज़न वाई दिस कर्व इज लाइक दिस। द ओनली इन वन सेंटेंस यू कैन से, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। If I say why this curve is concave to the origin, what you will say? Due to increasing marginal opportunity cost. See, marginal opportunity cost is increasing 1, 2, 3, 4, 5, and marginal rate of substitution. This one is also increasing 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Clear? So due to this increasing, PPC is concave. अगर ऐसा होता कि एमओसी क्या होता, 1 1 1 1 1, मतलब एमओसी सेम होता तो ऐसे में लीनियर बनता। एट दैट टाइम पीपीसी शुड बी लीनियर। इफ एमओसी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 5 फिर 4 फिर 3, इस होता तो वो कन्वेक्स बनता इस तरह का। बट मोस्टली, और वी कैन से दैट पीपीसी कर्व जब भी बनता है तो उसमें एमओसी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए पीपीसी हमेशा क्या होता है, concave to the origin. Clear? I hope you all have understood. Now come to the next point. Now you will ask, sir, what is MOC and MRT? We will discuss it in the next question, but over here just remember the formula. MOC formula is change in loss upon change in gain, and MRT means marginal rate of transformation. Its formula is change in loss ratio change in gain. See, बटर और गन की बात करें तो प्रोडक्शन में लॉस किसका हो रहा है, किसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, बटर में। तो बटर में लॉस हो रहा है और गन में क्या हो रहा है, गेन। तो कितना लॉस हुआ, 15 से 14, 1 का लॉस, और गेन कितना है, क्या 1 का। तो 1/1 इज इक्वल टू 1, सो वी आर राइटिंग ओवर हियर 1। नाउ अब बटर में देखो, बटर में लॉस कितने का है, 14 से 12, कितने का लॉस है, 2 का, और इसमें कितने का गेन है, 1 का। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2। फिर कितने का लॉस हुआ 12 से 9 में, 12 से 9 आने में कितने का लॉस है, 3 का लॉस है, और इसमें कितने का गेन है, 1 का गेन है। तो 3/1 इज इक्वल टू 3, मतलब जितना का लॉस हो, चेंज 12 से 9, 12 से
9 आने में कितने का चेंज है 3, और इसमें गेन कितने का है 1, तो 3/1 इज इक्वल टू 3. इन दिस वे विल गेट द MOC वैल्यू. क्लियर ना. इसको और भी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे, बट फॉर हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग, सो मैं बता रहा हूँ. और MRT मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सेम MOC और MRT बोथ आर सेम. MOC में हम डिवाइड करके लिखते हैं, MRT में हम उसका रेशियो लिखते हैं. तो चेंज इन लॉस रेशियो, चेंज इन गेन. देखो लॉस कितने वैसा बटर में, देखो लॉस कितने का था 15 से 14, कितने का लॉस है 1, और इसमें गेन कितने का था 1, तो 1:1. पहला वाला हमेशा ब्लैंक जाएगा 1:1. फिर 14 से 12 कितने का चेंज है 2 का, और इसमें गेन कितने का है 1 का, तो 2:1. इस तरह 3:1. इन द सेम वे यू हैव टू राइट. अंडरस्टूड. सो नाउ आई थिंक अप टू हियर everything is clear. Now come to the next part. This page is very important. इसमें 4 डायग्राम है. See over here I have made 4 graph. पिक 1, पिक 2, पिक 3 एंड पिक 4. पिक 1 डिनोट्स PPC, सभी में PPC है. पिक 1 में देखिए अगर 3 पॉइंट लिया गया, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. पॉइंट A मीन्स वी आर नॉट यूटिलाइजिंग फुल रिसोर्स, मतलब मैं पूरा रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50 आदमी है तो मैं 30 आदमी को ही यूज़ कर रहा हूँ. इट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. सी इट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. यानी अगर आप PPC के इनसाइड है, इफ़ यू आर इनसाइड इन PPC, इट मीन्स ये रिसोर्स पूरा यूज़ नहीं हो रहा है. अगर हमारे पास 50 आदमी है तो हम उसे 30 को यूज़ कर रहे हैं. पॉइंट B डिनोट्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किसे कहते हैं, जब अगर 50 आदमी और 50 के 50 को हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. अगर 10 फैक्ट्री या 10 फैक्ट्री हम काम पे लगाए हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. अब पॉइंट C इनसफिशिएंट रिसोर्स, मतलब पॉइंट C तक हम नहीं पहुंच सकते. यानी अगर हमारे पास 50 आदमी है और हमें ज़रूरत है 60 आदमी का, दैट मीन्स वी आर बियॉन्ड PPC, आउटसाइड PPC. तो अप टू हियर क्लियर. पॉइंट A, B एंड C. पॉइंट A अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स, यानी रिसोर्स का पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. पॉइंट B फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितने रिसोर्स से पूरा यूज़ हो रहे हैं. पॉइंट C इनसफिशिएंट रिसोर्स, मतलब ये हमारे रिसोर्स के बाहर है, दैट मच रिसोर्स वी डोंट हैव. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्राफ. सी आप ये ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए कि PPC एक पॉइंट पे तो फिक्स्ड है लेकिन दूसरे पॉइंट पे रोटेट हो रहा है. इसका मतलब रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रिसोर्स किस में इंक्रीज हो रहा है, गन में या बटर में, सिर्फ और सिर्फ गन के प्रोडक्शन में. मतलब उस देश में, उस इकोनॉमी में रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन द प्रोडक्शन ऑफ गन ओनली, यानी सिर्फ गन के प्रोडक्शन में. बटर में उतना ही बंदा है. फॉर एग्जांपल अगर हम 30 बंदा बटर में है और 10-20 बंदा गन में है, और हम रिसोर्स बढ़ाएं, गन में 20 से कर दिए 40, कहीं से और से ले आए, रिसोर्स हम इंक्रीज़ किए, यानी PPC शिफ्ट करेगा ऊपर. ये देखिए PPC इधर गया, बट एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, क्योंकि वो जो रिसोर्स इंक्रीज वो कहाँ यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गन. ऐसे कंडीशन में कहते हैं रोटेशन ऑफ PPC. रोटेशन ऑफ PPC मीन्स वेयर PPC मूव एट वन पॉइंट बट इन अनदर पॉइंट इट शुड बी फिक्स्ड. क्लियर. कम टू द थर्ड पिक. सी द होल PPC शिफ्टिंग अपवर्ड. पूरा का पूरा PPC अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है. सी द होल PPC शिफ्टिंग अपवर्ड. व्हाट डज इट शोज, इट शोज दैट बटर और गन दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा PPC ऊपर चला गया. और जब दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इसका मतलब रिसोर्स जो इंक्रीज हुआ है हम दोनों के प्रोडक्शन में लगाए हैं. इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. एक लाइन में याद रखिएगा, इफ द PPC शिफ्ट अपवर्ड इट शोज दैट रिसोर्स हैज़ बीन इंक्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एंड इट डिनोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसे में दिखाता है कि उस देश में आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक वृद्धि हुआ है. बट अगर किसी कारण से PPC नीचे शिफ्ट करता है, जिसका मतलब उस देश में रिसोर्स घट गया है, इंक्रीज नहीं हो बल्कि डिक्रीज हुआ. जैसे कि बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, जिसकी वजह से रिसोर्स खत्म हो गया, लड़ाई में बहुत लोग मर गए जिसकी वजह से रिसोर्स खत्म. ऐसे में PPC नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और इसको कहते हैं इकोनॉमिक डाउनफॉल.
economic downfall. So remember this, if PPC move upward, it is called economic growth, that means resources are increasing, and if PPC move downward, it means resource decreasing, economic downfall. Clear? Now come to the fourth graph. See this point A is either moving on X, either moving toward Y and either moving toward Z. अगर X के तरफ मूव कर रहा है, इट शोज दैट हम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं. अगर पहले तो ये समझिए कि A पर है मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का पूरा यूज नहीं हो रहा है. अगर हम X के तरफ जा रहे हैं मतलब रिसोर्स को यूज़ करना शुरू किए, बट उसको किस में कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बटर में. रिसोर्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो रिसोर्स बचा हुआ था उसी को यूज़ करें इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर. अगर हम Y के तरफ जा रहे हैं मतलब रिसोर्स जो है, जो हमारे पास रिसोर्स रखा हुआ है, वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ बटर एंड गन. दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस रिसोर्स को. अब जेट के तरफ जा रहे हैं तो इट शोज कि रिसोर्स जो हमारे पास था उसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गन. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस 3 पॉइंट? If you will get this type of graph and it is told that what does it denote, simply write these things. Understood? I hope you all have understood what is PPC. Now what is opportunity cost? See this, opportunity cost. Opportunity cost is the cost for the next best alternative foregone. Next best alternative foregone. Next best alternative foregone. This can be better understand through the example. ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते थ्रू एग्जाम्पल. जैसे एक बैंकर जॉब कर रहा है, उनको सैलरी मिल रहा है 50,000 और उनके पास 2 जॉब ऑफर है, एज ए जर्नलिस्ट 30,000, एज ए गवर्नमेंट टीचर 45,000. तो वो तीनों काम तो कर नहीं सकता. व्हाट ही विल डू, जहाँ उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है वो काम करेगा. दैट इज़ ही विल कंटिन्यू एज ए बैंकर एंड गेट द सैलरी 50,000. उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके पास क्या था? एज ए टीचर 45,000 जो वो गवा रहा है एज ए टीचर, दैट विल बी नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो उसे नहीं मिल पा रहा है. वो नेक्स्ट है, एज ए जर्नलिस्ट नहीं लेंगे क्योंकि उसका नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? 45. क्लियर? सो उसके लिए 45,000 इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. तो वो 45,000 को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे. इसको डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे. डिफाइन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अर्लियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स change in loss upon change in gain. Yes or no? See the formula beside the schedule. Change in loss upon change in gain. And what does it define? It is the additional opportunity incurred for one good foregone in order to produce one extra unit of other good. अब इस schedule को देखिए, then only you can able to understand. See this schedule. When we increase the production of gun, we are decreasing the production of butter because our resources are fixed. ठीक है? तो बटर जो हमें नहीं मिल पा रहा है, बटर जो बटर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो बटर में जो पैसा मिलता है वो हमें नहीं गेन, वो इनकम हम नहीं अर्न कर पा रहे हैं. उसी इनकम, उसी खर्च को, उसी इनकम को बोला जाएगा एज ए कॉस्ट. और वो कौन सा कॉस्ट है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक यूनिट गन इंक्रीज करने में जितना बटर गवा रहा है, दैट विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर हम पहले की बात करें, सी द फर्स्ट, 0 से 1. एक यूनिट गन इंक्रीज करने में कितना गवा रहा है? बटर 1. तो 1 हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब दूसरा एक यूनिट बढ़ाने में कितना गवा रहा है? बटर 2. तो एक यूनिट इंक्रीज करने कितना कर रहा है? 2. तो 2 विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी. यानी 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना यूनिट हम बटर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, सो वी कैन यूज दिस वर्ड सैक्रिफाइस. बटर कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं. सिंपली इसको रेशियो में अगर लिख दे तो इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज एक यूनिट ऑफ गन बढ़ाने के लिए कितना रिसोर्स हम बटर से ट्रांसफर कर रहे हैं गन में. क्लियर? इसको डिटेल में आप लोग एक बार देखोगे स्टार्टिंग से लास्ट तक. अब बोलोगे सर अगर हम इस एजम्पशंस को हटा दें तो क्या पीपीसी ऊपर शिफ्ट कर सकता है? यस. अगर आप चाहते हो कि देश का पीपीसी ऊपर शिफ्ट हो, यानी रिसोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करो, क्योंकि हम एज्यूम क्या मान के चले हैं?
कांस्टेंट। आप बोलोगे सर रिसोर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स। हम बेटर किसको कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को। ह्यूमन रिसोर्स एजुकेट करो, ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज होगा, अपने आप पीपीसी शिफ्ट करेगा। या फिर फैक्टर्स को इक्वली एफिशिएंट करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर फैक्टर, हर बंदा इंजीनियर बन सके। कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई मैनेजर, कोई डॉक्टर, इसीलिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है। That's all for today. I hope you all have understood. If there is any query, you can ask me. Thank you. Have a good day.